वाहिगुरू जी का खालसा खालसा वाहिगुरू वाहिगुरू जी जी की की ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਤੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਸ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਐਟਲੀਸਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਦ ਗੈਪ ਬਿਟਵੀਨ ਯੰਗਸਟਰਸ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਰਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੌਪਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। this is something which has to be catered to immediately than anything else, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਗੈਪ ਬਿਟਵੀਨ ਯੰਗਸਟਰਸ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਦਾ ਗੈਪ ਬਿਟਵੀਨ ਯੰਗਸਟਰਸ ਐਂਡ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਰਿਚ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲੈਸ਼ ਆਫ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਲ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਦਰਾਂ ਨਾਲ, ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਨਾਲ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੰਦਲੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਮਾਜ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਉਪਦਰਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਪਦਰਵ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਵਿਦਇਨ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਔਰਗਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਔਰਗਨਸ ਹੈਵ ਡਾਈਡ। ਸਰੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਪਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। तो मैं अक्सर कहना होना कि we human have learned to control the world outside us, but we had very little control over the world inside us. और एक गल ये भी बड़ी समझन वाली है कि बच्चों ਨੂੰ उपदेश जितने मर्जी दियो वो करनगे वही जो माता पिता करते हैं या जो बच्चे देख रहे हैं कि children learn what they live। तो वही सीखते ते समझते हैं जो देखते ते सुनते हैं and live what they learn। तो ਸੰਸਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। तो बेटी का अगों जवाब से मम्मा वी आर नॉट फाइटिंग, वी आर प्लेइंग मम्मी डैडी। तो घरां विच पति पत्नी दा जिहड़ा आपस दे विच कलैश है, कलह ने भरे हुए ने, क्रोध, अहंकार, एक दूसरे दे प्रति ईर्खा, एक दूसरे नूं डोमीनेट करना। और इसे माहौल दे विच साडी नवीं पनीरी साडी जनरेशन पैदा हो रही है।
और इस ही सिचुएशन लिच गुरु ग्रंथ साहब का एक बड़ा खूबसूरत शब्द है कि कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, पुत जनूरा दिया जनूरी, जोरू जिन्ना दा सिकदार। भूतने पैदा हो रहे हैं क्योंकि माहौल जड़ा है वो नफरत वाला है। भूतने पैदा हो रहे ने, औलाद भूतनी है, जड़ा पुत्र है वो जनूरा भूतना है, धी जनूरी, और इन्हां दा जड़ा सिकदार है, इन्हां दा जड़ा लीडर है वो जिहड़ी जोरू है, वाइफ जिहड़ी है, लेडी कह लो, वाइफ कह लो। जनरेशन साडी नशियां विच लिपत है, संस्कारां तो एथिक्स तो दूर हो रही है, और अज दी जनरेशन नूं सिर्फ ते सिर्फ जिसम दिख रहा है, ना मां दिख रही है, ना बहन दिख रही है, ना धी दिख रही है। क्यों जी सोसाइटी जिहड़ी है डेवलप असीं अपने आस पास हुंदी देख रहे हैं। जनरेशन का जिहड़ा ब्रॉटअप है वो वैर विरोध दे विच, लड़ाई झगड़ियां दे विच, नफरत दे विच हो रहा है, और दिलों के रिश्ते जिहड़े ने वो खून के रिश्तिਆਂ तो ज्यादा पवित्र हुंदे ने। ये मैं पढ़िया और बड़ी बार सुनिया, और इसका अगर देखना है अज दे माहौल की जिहड़ी मैं चर्चा कर रहा तो असीं खून दे रिश्ते जिहड़े ने उन्होंने बिरध घर विच देख रहे हैं। बच्चे अपने माँ बाप नूं बिरध घरां च सट के आ रहे हैं। ये खून दे रिश्ते, असीं रिश्तिਆਂ दी, लहू दे रिश्तिਆਂ बर्बादी वाल बड़ी तेजी नाल वध रहे हैं। स्क्रिप्ट इज रेडी, ओनली जिहड़ी है शूटिंग इज लेफ्ट। तो जिहड़े बच्चे ने, मैं अक्सर अपने हर लैक्चर कहना और मेरी चिंता भी होंदी है कि बच्चे जिहड़े ने दे डोंट ओबे देयर पेरेंट्स। फिक्का बोलना, माता पिता नाल झगड़ना आम देखण नूं मिलदा है, जबकि गुरबाणी तो समझा रही सी कि काहे पूत जगरत संग बाप, जिनके जाने बडीरे तुम हो तिन स्यों जगरत पाप। गुरबाणी तो समझा रही सी। एक कारण इसलिए कि असीं गुरबाणी तो दूर होए हां, असीं गुरु ग्रंथ साहब नूं मनदे हां, गुरु ग्रंथ साहब दी नहीं मनदे। फिर वार्निंग भी दिती है, यह भी गुरु ग्रंथ साहब, रसना फिक्का बोलना नित नित होए खुआर। जेडे मुंह तो शब्द ने ये जदों भी असीं फिक्के या जेडे अनप्लेजेंट शब्द असीं मुंह तो बोलांगे नित नित खुआर होवांगे। और यह सब इसलिए हो रहा है कि असीं बच्चों नूं असीं अपनी विरासत, अपने विरसे, अपने संस्कारां तो, वे ऑफ लाइफ तो, कह लवां गुरु ग्रंथ साहब तो, बाणी तो, गुरमत तो असीं दूर रखा हुआ है। कितना खूबसूरत शब्द है, मनमुख उबे सुक गए, ना फल तिना ना छाओ। हुण समझिए इस लाइन को कि जेड़ियां टाहनियां बिरछां नाल जुड़ियां रहिंदियां ने वो अपनी मूल तो, अपनी रूट तो, अपनी जड़ां तो रस लैंदियां ने, खुराक लैंदियां ने, उन्हां दे फल भी लगदे ने, फुल भी लगदे ने। पर जो टाहनियां, जो वृक्ष नालों टुट जांदा है हिस्सा, फिर उसनूं सोटी कहंदे ने, वो मुर्दा हो जाती है। तो ये गल नूं असीं समझिए कि असीं जो अज असीं हालात देख रहे हैं कित्थे ना कित्थे कारण असीं हां, क्योंकि असीं संस्कारां तो उन्हां नूं दूर रखिया। मनमुख उबे सुक गए, ना फल तिना ना छाओ। बच्चियां ते नौजवानां विच असीं जिहड़े देख रहे हैं आम करके कि बजुर्ग ते बच्चियां ते नौजवानां दे विच जनरेशन गैप की गल करते हैं। बेसिकली ये जनरेशन गैप नहीं है, एक कम्युनिकेशन गैप है। देखो, शक्ति, एनर्जी जवानी कोल है, अनुभव या एक्सपीरियंस कह लवा बुजुर्गी कोल है। आपसी तालमेल नहीं है, आपसी कम्युनिकेशन नहीं है। Often the youngsters and older generation behave like rivals. ये हो रहा है, घर घर की कहानी है। तो आमतौर पे एक कहावत है इंग्लिश की कि अजकल के बच्चों लिए कि दे लिसन हाफ, जो तुसी बोलते हो उदा अद्धा वो सुनते रहे। अंडरस्टैंड क्वार्टर, थिंक जीरो, रिएक्ट डबल। ये इसलिए हो गए क्योंकि असी उन्होंने वैल्यू सिस्टम तो दूर रखे सी। अपने घर के इन्वायरमेंट्स नूं, जिहड़े इन्वायरमेंट्स उन्हां बच्चों के ब्रॉटअप लई जरूरी सी, उस विच असी उन्हां तो दूर रखिया। तुसीं कंट्राडिक्शन देखो जमाने की कि जिस माहौल दे, जिस इन्वायरमेंट दे विच असी जी रहे हैं, इहदे विच कितना वड्डा विरोधाभास है। साडियां इमारतां उच्चियां हो गई ने, इरादे जिहड़े ने वो साडियां नीवें ने, सड़कां चौड़ियां ने, सोचां सौड़ियां ने, हैं जी, मकान वड्डे हो गए ने, परिवार छोटे हो गए, डिग्रियां वध गईयां ने, लेकिन जिहड़ी ये अकल है ये घट गई है। ज्ञान वधेरे हो गया है, सोच घट गई है। बोलते वधेरे आ, सुनते घट आ।
ਗੱਲਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੰਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜਲੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਲੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਸਮਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਕਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਫਾਸਟ ਦੁਨੀਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਕਤੀ ਤੇ ਸੌਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਜੋ ਦਇਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਬੋਰੰਗੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਸਮਾਜ ਤਰਕ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਗਿਰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਈ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇ, ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਧਨ ਘਰ ਲਿਆਣਾ, ਸੁਧਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੇ, ਅੰਤ ਨਿਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਧਨ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੌਲਤ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਵੋਟੀ ਕੋਲ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛਲ ਕਪਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਧਨ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਲਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋਈ ਫਿਰ ਖਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਖੇਡ, ਲੇਲੇ ਕੋ ਚੁੰਗੇ ਨਿਤ ਭੇਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੇਲੇ ਕੋ ਚੁੰਗੇ ਨਿਤ ਭੇਡ, ਕਿ ਭੇਡ ਆਪਣੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਲੇਲਾ ਉਹ ਜੀਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰ ਇੰਜੋਇੰਗ ਇਟ, ਜਦ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋਈ ਫਿਰ ਖਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਏਗੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਨ ਸੁਖ ਬਿਠਾਲੀ ਤਿਸ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਭਾਈ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਦੇਖ ਵਿਵਾਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਨੇ, ਝਗੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਡਸ ਬੋਰਡ ਇਨ ਅ ਕੇਜ ਥਿੰਕ ਫਲਾਈਂਗ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਲਨੈਸ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੋਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਡਸ ਬੋਰਨ ਇਨ ਅ ਕੇਜ ਥਿੰਕ ਫਲਾਈਂਗ ਇਜ਼ ਅ ਇਲਨੈਸ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਉਸ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਣਿਤ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਗਣਿਤ।
डिजायर का जन्म, पैरालाइज्ड हो जाएंगे बच्चे, इक्को अंग चलता है और कोई नहीं चलेगा, जिंदगी लंगड़ी हो जाएगी। तो पैसा कमाने की दौड़ विच मां प्यो कोल अपने बच्चों लिए टाइम नहीं रहा, जिस कारण बच्चे प्यार ते संस्कारां तो दूर हो रहे ने, दूर हो जा रहे। पर मां अपने बच्चे की हर गलती, हर अपराध, हर गुस्ताखी नूं नजरअंदाज करती है, बिकॉज ही इज अर्निंग मनी। तो उहदे लिए भी बाणी ने कहा, सुत अपराध करत है जेते, जन्नी चीत ना राखस देते। जिन्ने अपराध करते मां उसनूं इग्नोर कर रही है, जिस कारण बच्चे जेडे ने वो विगड़ रहे ने, बच्चे गलत पासे जा रहे हैं। और ये सब का जिम्मेवार असीं आप हां, साडी परवरिश है। गुरबाणी तो समझा रही सी, बाबा माया साथ ना होए, इन माया जग मोहिया विरला बूझे कोई। सारा जग जिहड़ा है इहदे उत्ते जो है मोया होया। तो सानू बड़ा जरूरी है कि जनरेशन नूं, अपने परिवार नूं, अपनी फैमिलियां नूं अवेयरनेस देण दी, अपने वैल्यू सिस्टम दी, एथिक्स दी, मोरैलिटी दी, अपने कल्चर नूं बचाना है। और जिहड़ा ग्लोबल कल्चर तो जिहड़ा है ये बड़ी तेजी नाल जो है ये पूरे संसार नूं इसने अपनी गिरफ्त विच ले लिया। बड़ी तेजी नाल सानू सब नूं रोंद के अगदा, वी कैन नॉट स्टॉप दैट ग्लोबल कल्चर, ये सानू रोंद के अगे चलता जाएगा। तो वी कैन नॉट स्टॉप द ग्लोबल कल्चर। हुण प्रश्न यही है कि हाउ टू हैंडल अपनी जनरेशन नूं इस तो किवें बचाना है। ये अज विश्व दे विच चर्चा चल रही है। धर्म यानी वैल्यू सिस्टम ते टैक्नोलॉजी यानी ग्लोबल कल्चर, या मैं कह लवां जिहड़ा रोबोट सिस्टम है, इन्होंने आपस में एक दूजे के नेड़े किवें लिआंदा जावे। चिंता यही है कि टैक्नोलॉजी जिहड़ी है, ये जिहड़ा ग्लोबल कल्चर है, ये वैल्यू सिस्टम नूं, धर्म नूं खा लेगा। जिवें अज जिहड़ी विडंबना यही है कि ना धर्म चंगे लोगों के हथ है ते ना विज्ञान, ना टैक्नोलॉजी। विज्ञान ते धर्म किवें चंगे लोगों के हथ आवे, ये अज वर्ल्ड लैवल ते चिंतन हो रहा है। मैं एक लैक्चर च गल कही सी कि क्लिंटन वर्गे ने कहा सी गो बैक टू रिलीजन। तो जेडे एथिक्स ने, सदाचार है, जो वैल्यू सिस्टम है, शुभ आचार है, ये आचरण जो है, ये मनुखी जीवन के असल बंधन जेडे ने, इसनों आपां समझिए ये की ने। मनुखी जीवन के असल बंधन औगन ने, ये 5 विकार ने माया का, और ये बंधन सदगुणां नूं धारण करन नाल कट्टे जा सकते हैं। नानक औगन जेतड़े तेते गली जंजीर। जिन्ने औगन, जिन्नी माया दे विच, जिन्ने वाइसिस दे विच असीं साडे कंट्रोल तो बाहर होणगे, तां उहदे लई गुरु साहब कह रहे, नानक औगन जेतड़े तेते गली जंजीर, जे गुण होण तां कट्टियन से भाई से वीर। संत कह दिता, गुरु साहब तो समझा रहे सी, पर असीं गुरु ग्रंथ साहब नूं जो है वो समझ नहीं रहे। नाल अगे भी कहता, विन गुण कीते भगत ना होए। विन गुण कीते भगत ना की होया, वैल्यू सिस्टम है। गुण की है, गुण वैल्यू वर्चूज ने। सानू जिहड़ी है कि सानू एथिक्स की है, एथिक्स ने तो सानू हाउ टू लिव ए गुड लाइफ। सानू विरच्यूज इस तरह समझने सी। सानू आत्मक तल ते जिहड़ा है, ये सानू आपस विच जिहड़ी साडा जिहड़ा प्रेम है, प्यार है, साडा जिहड़ा बंधन है, आत्मक तल ते होना सी। पति पत्नी का जिहड़ा मिलन सिर्फ शरीरक तल ते नहीं होना, आत्मक तल ते होण नाल ही आइडियल जनरेशन दी जिहड़ी होंद विच आएगी। और संभावना भी यही बनती है कि जे आत्मक तौर ते एक होणगे, इहदे लई 4 लावां आनंद कारज आत्मक तौर ते एक करन दी गल करदियां। बच्चा रीबर्थ है माता पिता का, उही रूप, उही शक्ल, उही सुभाव। जनरेशन विच माता पिता प्रगट हो जाते हैं। माता पिता बच्चे नूं शरीरक जन्म तां दे दिता, पर शरीरक जन्म दा पूरी लिविंग बीइंग विच हो रही है। गल नूं समझिए, बच्चे तां जानवर भी पैदा हो रहे हैं, कीड़े मकोड़े भी पैदा हो रहे हैं, ये तो बंदे दे भी हो रहे हैं। तो ये तो जन्म तो हर एक चीज का हो रहा है। जरूरत आत्मक सहारे जिवें बच्चा टैक्नोलॉजी साइंस समझे, तिवें तिवें संस्कार भी समझे, वैल्यू सिस्टम भी समझे। और अगर औलाद प्यारी है अते उस विच दिलचस्पी है तो दसना पवेगा, दसना चाहिए कि गलती कित्थे है। इस प्रॉब्लम की समस्या का निदान सानू आप तक बैठ के सिर जोड़ के करना चाहिए। बड़ी खूबसूरत एक कहावत है कि इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, यू आर द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो इस तरह असी लगता है कि असी वी ऑल आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम।
सानू सब समझना पेगा सिर जोड़ के। तीन स्थितियां हो सकती ने मनुखी जीवन दियां। एक नरक है जिहड़े मनमुख की गल करते, एक स्वर्ग है, ठीक है ना, ये जिहड़ी है, और एक जिहड़ी है तीसरी जिहड़ी है वो लिबरेशन है, मोक्ष है, गुरमुख। एक नरक मनमुख, स्वर्ग गुरमुख, तीसरी लिबरेशन मोक्ष की गल हो गई है, मुक्ति की गल हो गई है, जिंदे जी मुक्त होने की गल है। बहुते नरक विच जींदे हां असीं लोग, जिसनूं कलयुग कह सकते हैं। ये ना सोचना कि नरक कित्थे पताल दे विच है, नरक साडे अंदर है। नरक साडे जीवन जीण दा ढंग है। आम तौर पर आम प्रश्न पूछा जाता है कि दुखों का छुटकारा किवें मिले। हर बंदा अरदासां ही कर रहा सी। लास्ट लैक्चर ये गल कीती सी, जिवें दुख ने तुहानूं पकड़िया होया है। असी पकड़े होया दुखां, दुख ने सानू नहीं पकड़िया। असी आप नहीं छड्डदे दुखां। जरूरत ज्ञान प्राप्त करन दी है। ज्ञान किसे तो मंगे नहीं मिलना, ज्ञान प्राप्त करना पेगा, उहदे लई एफर्ट्स करनियां पैणगियां। समुंदर दी ताज़ियां हवावां नूं जानना है तां समुंदर दे किनारे जाना पेगा। असी ज्ञान दे नाम ते कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। साडा ज्ञान दुनियावी ज्ञान है। जीवन जो भी मूलवान, सुंदर है, श्रेष्ठ है, सच है, असी उस तो अनजान। मेरी मुराद यही है कि जिहड़ा ज्ञान असी जिस ज्ञान की मैं गल कर रहा वो गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान, जिहड़ी विद्या विचारी ते परोपकारी वाला ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिहड़ा है उसनूं समझ। और गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु नानक साहब का बड़ा खूबसूरत शब्द भी है, ऐसा ज्ञान विचारे कोई तिसते मुक्त परमगत होई। ये जिहड़ी है मुक्ति है, किस तो पानी है मुक्ति? ये जिहड़ी लिख गुरु साहब कह रहे हैं तिसते मुक्त परमगत हुई। दुखों तो, मुश्किलों तो, बंधना तो, तकलीफों तो, प्रॉब्लम्स तो मुक्ति की गल है। और किहड़ियां प्रॉब्लम्स ने? तां निधान दस्या गुरु साहब ने कि ज्ञान वो है जो पॉजिटिव हो गए, जिस नाल सुकून आ जाए, जिस नाल सहज आ जाए, जिस नाल स्टिलनेस आ जाए। ये ज्ञान वो ज्ञान है जिहड़ा ज्ञान की गल कीती सी, विद्या विचारी ते परोपकारी। विद्या विचारी परोपकारी केड़ी विद्या, केड़े ज्ञान की गल कर रहे हैं? उस ज्ञान की जिस नाल उसनूं जानिया जा सकता है जो सब जानता है, ब्रह्म। हुण एक गुरु ग्रंथ साहिब की बड़ी खूबसूरत शब्द है, मैं वो साझा जरूर करना है। और इसने दुनियावी इस दुनियावी जिहड़ियां मैं हकीकतां कुछ तुहानूं दसियां ने वो गुरु ग्रंथ साहिब दे विच शामिल ने। चौथे पातशाह का शब्द है, वो कहते ने कि ज्यों जननी गर्भ पालती सुत की कर आसा, वड्डा होए धन खाट दे कर भोग विलासा। लो, जिन्नियां मैं चिंतावां कर रहा सी, गुरु साहब चौथे पातशाह कह रहे ने ज्यों जननी गर्भ पालती सुत की कर आसा। जदों कंसीव बच्चा हुंदा उदों ही जोड़ी जननी है, मां है, ये सुपने लैन पैंदी है कि वड्डा होए धन खाट दे, वड्डा होए कि मेरे लिए धन खट्टेगा, कर भोग विलासा, फिर असीं इंजॉय करांगे। मां, मेरी गल बड़ी ध्यान नाल प्लीज सुनना, मां अपने लहू मास विचों बुत सिरज के अपने जिसम दी हरेक रग विच अपने भविख, अपने फ्यूचर नाल जुड़ियां सारियां हसरतां, कामनावां ते खुशियां दे बीज बीज दिंदी है। भोली मां अपने अंदर बीजे जिहड़े बीज है उहदे सुपनियां दे विच वो देखदी है कि कदों ये बीज जिहड़ा है ये अंकुर बनेगा, कदों ये पौधा बनेगा, फिर दरखत बनेगा। इंतजार करती है कि कदों ये दरख्त वड्डा होएगा, कदों मेरा पुत्र औलाद मेरी ठंडी छां बन के कड़कदी धुप्पां तो, तत्तियां हवावां तो मैनू बचाएगा। पर इस कलयुग दे विच, इस एनवायरमेंट दे विच, जिस एनवायरमेंट का मैं जिक्र किया है, वो बीज दरखत बनदे ही निराशा का प्रतीक बन के अपनी छां ते ठंडियां हवावां मां बाप दियां हसरतां दे खिलाफ वगना शुरू कर दिंदियां ने। एक ट्रेजिडी है। हुण कई सवाल अजे हैं जिन्हां दा जवाब सिर्फ मां दे सकदी। कई आदतां जिहियां होंदियां ने जो केवल मां सिखा सकती है। कई जज्बे ऐसे होंदे ने जो मां ही जगा सकती है। कई आदर्श अजे होंदे ने जिहड़े केवल मां उसार सकती है। दुनिया का सब तो वड्डा स्कूल, दुनिया का सब तो चंगा स्कूल मां दी गोद, मां दा गोडा जिहनूं कह। और ये अलग गल है,
पर अज मां की जिहड़ी है वो मैं पहले भी चिंता जाहिर की है, दुर्गति हो रही है, संतान जिहड़ी है रुसन ते वख होने के बहाने ढूंढती है, गढ़ जिहड़े ने उजर रहे ने, मां बाप उजर रहे ने। तो इसलिए मैं इस गल नूं वार-वार कहना कि बच्चे का पहला जीवन प्रति अनुभव माता पिता राही, खास तौर पर माता राही होता है। ते इस अनुभव विच अगर श्रद्धा, सत्कार, प्यार ते दिलों के रिश्ते नहीं तो यह तय कि परमात्मा के प्रति, वैल्यू सिस्टम के प्रति, संस्कारों के प्रति उसका अनुभव हो ही नहीं सकता। सब कुछ उसनों इस स्कूल तो मिलना। देखो आम जिंदगी में असीं कोई कार खरीदनी होवे तो बहुत सोचते हैं, विचारते हैं, कोई फर्नीचर खरीदना तो भी सोचते ते विचारते हैं, हजारों विकल्पों को देखते हैं, तोलते हैं, मोलते हैं, किहड़ी चीज किवें खरीदनी है, किस तरह वरतनी है। लेकिन जदों बच्चों की गल आउंदी है तो कोई विचार नहीं करता। किस तरह के बच्चा तुसीं चाहते हो, किस तरह की आत्मा नूं तुसीं बुलाण जा रहे हो, ये जिहड़ा है इस गल नूं सानूं कदी असीं बैठ के विचार नहीं किया। दुनिया के सारे रिश्तियां विचों सब तो बेगर्द रिश्ता माता का है, मां ते बेटे का। साडी माता की महानता इस विच नहीं है कि मां बच्चे नूं जन्म दिता है, मां की महानता इस विच है कि मां ने बच्चे की परवरिश चंगी की कि नहीं, मां ने बच्चे को हिसाब सवाल की है कि नहीं। तो यह गल बड़ी नोट करने वाली है कि स्त्री की मुक्ति, होल वर्ल्ड की गल कर रहे हैं, स्त्री फीमेल की गल कर रहे हैं कि स्त्री की मुक्ति, स्त्री का मोक्ष मां बन जाती। जितनी वड्डी मां उतनी गहरी मुक्ति, जितनी वड्डी औलाद की परवरिश उतनी वड्डी मां। और आज साइंस ने भी एक तय कर दिता है, साइंस ने भी प्रूव कर दिता है। मेरिया ये गल्लां बड़ियां ध्यान नाल सुनो क्योंकि ये साइंटिफिक गल है, मेरी की प्रूव हो चुकी है कि ठीक है। मां विच जो बच्चा कंसीव हो जाता है, उसका निर्माण हो रहा होता है, तो उसका संबंध नाभि नाल, नाभि राही बच्चे को फीड मिल रही है, नाभि राही बच्चे का पूरा व्यक्तित्व का निर्माण जरा हो रहा होता है। उदों बच्चे का सिर्फ मास नहीं बन रहा होंदा, उदों बच्चे का दिल भी डिवेलप हो रहा है, उदों बच्चे का दिमाग भी डिवेलप हो रहा है। मां नाल शरीरक जोड़ का अंत बच्चे के जन्म लैन तो बाद, नाभि नूं कट्टण तो बाद, वो जोड़ा आपस दे विच जोड़ है मां ते बच्चे का, वो अलहदा हो जाता है। नवजात बच्चे नूं जो जीवन धारा नाभि तो मिलती थी वो हुण बंद हो जाती है। हुण बच्चे ते मां का संबंध होठां नाल हो जाता है, फीड राही। और जो जीवन धारा नाभि तो मिलती थी हुण वो होठां राही मां नाल जुड़ना शुरू हो जाता है। और परमात्मा का तुसीं देखो कमाल है कि परमात्मा ने नवजात बच्चे का भोजन का स्थान भी मां के दिल के उत्ते रखे, दिल से बनाया। वो मां नाल नाभि दे रिश्ते टुटन तो बाद दिल का रिश्ता कायम रहे, दिलां दा रिश्ता कायम हो जाए। एक कुदरत का एक करिश्मा है जिस नाल फीड मिलती है। देखो विडंबना कितनी वड्डी एक चिंतन वाली ते चिंता की गल है, जिस तो फीड मिलती है उस संबंध नूं मां मुनकर हो रही है। मां अपना दुध नहीं बच्चे नूं पिला रही, जिसका नतीजा बच्चों दे विच वधदे विद्रोह के रूप दे विच महसूस किया जा रहा है। वायलेशन ऑफ नेचर हो रही है। ये गल मैं एक कोई 70 साल पहले दी किताब पढ़ रहा सी डॉक्टर राधा कृष्ण दी, उहदे च उन्हां दिनां विच लेबर पेन लई नवां इंजैक्शन आया सी ते डॉक्टर राधा कृष्ण लिखते हैं कि यह इंजैक्शन जिहड़ा है लेबर पेन लई लगाना ये वायलेशन ऑफ नेचर है, ये परमात्मा के काम दे विच दखल है। जिहड़ी मदरहुड है वो मदरहुड नूं वायलेट किया जा रहा है। तो मां दे हथ विच करामात है, बोलां दे विच बरकत है, वन मैन आर्मी है। मां अपनी औलाद नूं देवता भी बना सकती है, वारियर भी बना सकती है। नेपोलियन ने कहा सी तुसीं मैनूं चंगियां मावां दिओ, मैं तुहानूं चंगी जिहड़ी है जिहड़ा है चंगा नेशन दिया। एक रस्कन बहुत वड्डा फिलोसफर होया क्रिश्चियन, तो उसनूं पूछा गया कि की कारण है तू इतना वड्डा इंसान बन गया, इहदे पिछे किसदी शक्ति है।
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਮਦਰ ਕੇਨਡ ਬਾਈਬਲ ਇਨਟੂ ਮਾਈ ਸਕਿਨ, ਮੇਰੀ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪਤੀ, ਧੀ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਦਾਇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਕਰਤੱਵ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ, ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਾਇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੇ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਾਤ ਦਾ ਮਤ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬੈਟਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। The mother who cannot raise her children to be good human being, it is better she does not give birth to children। ਫਰਜ਼ਾਈਲ ਨੇ ਉਹ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਲੇਟੋ ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦੇਣੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਿਆ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਯਾਨੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। तो विद्या जन्म तो पहला आरंभ हो जानी चाहिए। इसलिए कोई प्लेटो कह रहा है कोई पुरख या स्त्री पूर्ण तौर ते नरोए, नरोए तो मतलब मानसिक तौर ते नरोए होए बिना संतान पैदा ना करे। ये 2000 साल पहले प्लेटो कहते। इनू गुरु ग्रंथ साहब ने भी जो है होर तायद करती। गुरु ग्रंथ साहब कह रहे ने जे कुल पीत पूत जे कुल पूत ना ज्ञान बिचारी विधवा कस ना भई महतारी। लो ये सेम वही गल करती कि जे किसे माता पिता ने अपने बच्चे नू ज्ञान वैल्यू सिस्टम नहीं देती वो विधवा ही क्यों नहीं होगी। सेम इहदा भी एक मतलब समझना कि बच्चे नू अगर तुसी वैल्यू सिस्टम नहीं दे सकते, संस्कार नहीं दे सकते, बेटर बच्चे इस दुनिया विच ना आन, पैदा ना करो। और जो बच्चा इस दुनिया में प्रवेश कर जाता है वो एक कोरी स्लेट की तरह है। उस स्लेट पे जो लिखना चाहो तुहाडे विवेक ते है। गंदगी लिखोगे तो लिख सकते हो, शुभ लिखोगे तो बच्चा धर्म ग्रंथ बन जाएगा, चंगा लिखोगे बच्चा निक्कियां निक्कियां गल्लां करामात दी ताकत रखदियां ने। मां दी जिहड़ियां प्रेरणावां ने महापुरुष पैदा कर सकदियां ने। जो कुछ बीजो ध्यान रखो कि तुसी की बीज रहे हो, क्योंकि जो आज बीज रहे हैं उस तो ही पता लगेगा कल की उपजेगा। ईमानदारी नाल परवरिश करो, उसकी उहदे च विश्वास आएगा। चंगियाई नाल करो तुहाडी दोस्ती हो जाएगी, उस नाल निमरता नाल करो उहदे च अपनत्व आ जाएगा। धीरज नाल करो तो उहदे विच जिहड़ी है ना जिहड़ी जित विक्ट्री दी भावना आ जाएगी। मेहनत नाल सफलता आ जाती है, कुर्बानी नाल प्यार पैदा हो जाता है, खिमा नाल वफादारी, विश्वास नाल करामातां हो जांदियां ने। एक काबल ते नोबल दी गल करा कि एक काबल ते नोबल बच्चा पैदा करन दियां गल्लां सी। ये उजागर करन लई सब तो पहला जिहड़ा एक नोबल बच्चा है उहदे सुंदर बोल, उहदी सुंदर भाषा दा प्रयोग करना है। उसदे मनुख आम तौर ते देखो एक साइकी है और बड़ी सच्चाई है, रियलिटी है। आम तौर ते जिहड़ा ज्ञान है ये वेख के ते सुन के अते स्पर्श करके छू के
इस तो बच्चा सीखता है। सारी ईमानदारी, सारी ਜਿਹੜੀ ईमानदारी है वो बच्चे दे परवरिश दे विच होनी चाहिए। और इंसानी सिक्ख्या का तकरीबन, ये साइंटिफिक गल कर रहे हैं, इंसानी जिहड़ी सिक्ख्या है इसका तकरीबन 80% ज्ञान अखां राही वेख के आउंदे ने। जो बच्चे जो वेखदे ने वो करदे ने। बच्चों नूं जिहो जिहा विखाओगे वो उहो जिहा ही सिखणगे, उहो जिहा ही हासिल करनगे। बहुत मशहूर चित्रकार बेंजामिन वेस्ट, वो लिखता है कि मेरी मां द्वारा मेरा मुंह चुम्मन ने ही मेरे अंदरले चित्रकार नूं जन्म दिता। क्या कमाल की गल करती है। और आज साइंस भी यही कह कि जेडे मिठे बोल ने ना, जी साउंड है ना साडी मुंह चो निकलती, वो है ना मनुख होना बस एक मिठी आवाज है। तो बड़ी पुरानी, हजारों साल पुरानी गल है। तो मैं कहना सिख होना बस एक मिठी आवाज है। एवरी रेवोल्यूशन बिगिंस विद ए वर्ड साउंड। फिर वो कहता है इफ सॉफ्ट वर्ड स्पोकन दे कैन लीड टू पॉजिटिव मोटिवेशन एंड इंस्पायर पर्सन। बड़े सोहने प्यारे मिठे मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी गोरा। मिठे शब्द जो बच्चे नाल बोलोगे, प्यार नाल बोलोगे, उहदे च इंस्पिरेशन आएगी। एंड इफ रूड वर्ड्स आर यूज्ड इट कैन क्रिएट फीलिंग ऑफ रिवेंज, फीलिंग ऑफ हेटर्ड विद इन ए पर्सन। तो वो कहते हैं कि अगर इफ वी हियर मटीरियलिज्म, मटीरियल पदार्थों की गल होएगी, इट विल लीड टू मेंटल पोल्यूशन। व्हेन वी हियर स्पिरिचुअल, कुछ चंगियां गल्लां सुनांगे, then it will lead to revolution within। अंदर जड़ा है वो जड़ा जिन्हों कहते ना अपना आपा जान लेना। इसलिए बी ए लर्नर विद बच्चों के नाल लर्नर की तरह बिहेव करो एज ए लर्नर। द फ्यूचर बिलोंग्स टू द लर्नर नॉट टू द लर्न। ऐ ना कहो कि सानू सब कुछ आता है, इस गल नूं समझने है। तुसीं समझो असी भी सीखना है। तो बच्चों नाल मदद करने वाला, उन्होंने सहायता लई जिहड़ी माँ बाप जिहड़ी है उहदी हर गल दे विच उहदे नाल खड़े होने चाहिए। बिल्ड एन इमोशनल बॉन्ड विद योर चिल्ड्रन। इमोशनल जिन्ने दे एस्पेक्ट ने उहदे नाल करिए। लव देम एंड विन देम। प्यार करो। डोंट गिव देम सॉल्यूशन, एनकरेज देम टू फाइंड सॉल्यूशन। आम तौर पर असी छोटी छोटियां गल्लां ते जिहड़ी है असी बच्चों की आलोचना करनी, उन्होंने क्रिटिसाइज करना है जी, उन्होंने सुभाव भावनावां का विरोध करना। जे इस तरह करांगे तो फिर उन्होंने क्रोध आता है, हिंसक बन जाते हैं। जे उन्होंने डर पावांगे, असी गल ते छोटी छोटी गल ते डरा देंगे हैं तो हर चीज तो डरनगे। जे उन्होंने तरस करोगे तो हर थां ते वो सहारा ढूंढणगे। मखौल उड़ाओगे तो वो लुकणगे तुहाडे। they will feel shy। तो ये जिहड़ी सारियां चीज़ां ने, ये सारियां सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होएगा जे उन्होंने तुसी अपना बना के उन्होंने समझा। पर असीं सारा जोर अपने बच्चों के राह पद्धरा करन ते लगा दिंदे हैं। उन्होंने सुखी बनाने लिए असीं हर काम असीं आप कर दिंदे हैं, लोड़ नालों ज्यादा ध्यान रखते हैं। कोई मुश्किल या कोई समस्या पैदा हो जाए तो उन्होंने हल असीं कर दिंदे हैं, बजाय कि बच्चे नूं कहना कि अपनी समस्या इस तरह हल कर। असीं अपनी संतान नूं जदोजहद की मेहनत विचों गुजरन ही नहीं देते। सवे काबू, सवे संयम, सबर, त्याग, संकोचता इहदे तो आना सी, मिलवर्तन तो आना सी। तो इहो जे गुण, इहो जे व्यवहार जिहड़े ने ये उन्हां नूं सानूं दसना पएगा। सानूं बच्चिआं नूं अपने आप नाल, सानूं अपने नाल इन्वॉल्व करना पएगा। है ना वो बड़ी खूबसूरत कहानी, इफ यू टेल देम दे विल फॉरगेट। सिर्फ गल्लां नाल गल करोगे तो भुल जाणगे। इफ यू शो देम दे विल रिमेंबर। जे उन्होंने तू कुछ करके दिखाओगे, हो सकता है वो कुछ याद रख लैन। बट इफ यू इन्वॉल्व देम दे विल अंडरस्टैंड। उन्होंने दिमागां दे विच जिहड़ी समझाना है उन्होंने, वो तुहानूं इन्वॉल्व करना पड़ेगा। वो है ना एक कहावत, कैच देम यंग। ये बचपन तो ही शुरू करना पड़ेगा। हैंडल विद केयर वाली गल। तो जिहड़े पेरेंट्स ने, माता पिता ने, इन्हां नूं बहुत जरूरी समझना पएगा कि आम तौर पे हर माँ बाप चाहता है कि बच्चा मेरे हुक्म चले, मेरे कंट्रोल च रहे। इत्थे थोड़ा ध्यान रखना कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल एंड कंसर्न। दसना पवेगा बच्चों को कि हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक। ये गल बड़ी ध्यान की गल रखना। बच्चों को इस तरह समझाना पड़ेगा। बच्चों को ओबीडियंट बनाना है या ड्यूटीफुल।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਬੀ ਓਬੀਡੀਐਂਟ, ਪਰ ਡਿਊਟੀਫੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਪਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਡੀਐਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰਿਵੋਲਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀਫੁਲ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਸੈਂਸ ਆਏ। ਅੰਡਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਮੈਨ ਗਰੋਜ਼। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ, ਸੰਜਮ, ਸਦਾਚਾਰ, ਸਾਦਗੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਐਥਿਕਸ, ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਰੂਸੋ, ਉਸਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਫਸਟ ਟੂ ਦਾ ਏਜ ਆਫ ਅਬਾਊਟ 12 when children are guided by their emotions, 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਡੂਰਿੰਗ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ 12 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਐਡਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਈਏ, ਪੰਚਵਰਸਾਰੀ 10 ਵਰਸ਼ਨ ਤਾਂਡਿਅਤ ਪ੍ਰਾਪੇਤ ਸੰਡੋਸੇ ਵਰਸੇ ਪੁੱਤਰਮ ਮਿੱਤਰਵਤ ਅਚੇਤਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ them with love, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ 10 years keep them under discipline, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। and when become of the 16 years ਫਿਰ as a friend। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਸੈ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਦੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵਰਚੂਜ਼ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੁਣਾਇਆ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਸੈ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਇਹ ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਡ ਆਫ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਐਂਡ ਚੇਂਜ ਐਨੀਵਨਸ ਡੈਸਟੀਨੀ। ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, 3 ਧਨ ਜਨੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਧਨ ਨੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕਿ ਥੋਮਸ ਐਡੀਸਨ ਇਨਵੈਂਟਰ ਹੋਇਆ ਬਲਬ ਦਾ, ਲਾਈਟ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ, ਕੈਮਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਲਿਖਦਾ, ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖਦਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਜੀਨੀਅਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਨੀਅਸ ਲਈ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਤੇ ਨਾਕਾਬਲ ਹੈ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਟੀਚ ਯੂਅਰ ਸਨ ਯੂਅਰਸੈਲਫ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ
एक दिन कहता है, फिर एडिसन ने बड़िया इन्वेंशनस कीतियां। एक दिन वो कहता है कि पुराना फोल्डर मैं कागजां दा खोलिया सालां पहले दा, वेख्या तो वो चिट्ठी मिल गई। जेड़ी बच्चे ने उस टाइम चिट्ठी नहीं सी पढ़ी, उस चिट्ठी पढ़ रहा है कि ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਅਰ ਸਨ ਇਜ਼ ਮੈਂਟਲੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। we cannot let him attend our school anymore, so he is expelled। ਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਜੀਨੀਅਸ। ਹੁਣ ਐਡੀਸਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਡੀਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋਮਸ ਏ ਐਡੀਸਨ ਵਾਜ਼ ਏ ਮੈਂਟਲੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਚਾਈਲਡ whose mother turned him into a genius of the country, genius of the world। ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੀਸ਼ੇਪ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੀ ਏ ਰੋਲ ਮਾਡਲ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਗੋਲਡਨ ਰੂਲ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟ ਦਾ ਅਦਰਸ ਦਾ ਵੇ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕਰੈਕਟ ਚਿਲਡਰਨ ਵੈਨ ਦੇ ਆਰ ਐਂਗਰੀ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਇਆ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰੋ, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ what we are going to hand over to our future generation, ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਂ ਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸੋਚਾਂਗੇ? ਤਾਂ we have to protect our children, not for just us, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਰਨ ਆਪਣੇ ਦੱਸੇ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵਧੇਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਸਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਂਬੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਬੜ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਬੜਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਦਿੱਖ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਕਤਿਤਵ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹਸਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਚਿਲਡਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ when you finished with them, the rest of the world has to live with them। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਸਨੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। So please teach them respect. Leave your values at the front desk। ਆਪਣੇ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ, ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਮਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਲਾਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਯੂਅਰ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ, ਟੇਕ ਯੂਅਰ ਹਾਰਟ। ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਚਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨੀਡ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਨੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਦ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਿਮਕ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ। ਘਰੀ ਮੋਹਤ ਰੰਗ ਮਾਨੈ, ਫਿਰ ਬੋਰ ਪਛਤਾਵੈ।
वो उर्दू दे विच किसे शायर ने कहा सी, कभी थोड़े से मजे के लिए गुनाह मत कर, क्योंकि मजा तो छिन भर का खत्म हो जाएगा, गुनाह तेरी कबर के साथ तेरे साथ जाएगा, कबर दे नाल तेरे नाल जाएगा। ए जड़ा शब्द है, निमक से निमक काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे। एक छोटे जे अपने फायदे लिए, डिजायर्स लिए तू कितने हजारां वार तू है जेड़ा दुख पाना है, किन्ने लखां दिनों तक गरी मोहत रंग माने एक छोटे जे टाइम तक, और एक अपनिया इच्छावां पूरियां करने लिए फिर बोर बोर पछतावे, फिर तू पछतावे। तो बच्चों को समझाओ कि being a rich does not bring happiness, nor does bring poor bring unhappiness। पैसे नाल खुशी ते गमी दुख नहीं ने। तो इसलिए मैं क्लिंटन की गल कीती सी, ते मैं तुहानू भी सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करांगा कि जिहड़ा धर्म है, धर्म सिखाओ बच्चों को। गो बैक टू रिलीजन टू ब्रिंग दैम बैक टू लाइफ। समझाना पवेगा, आसमान विच उड्डो, कोई मनाई नहीं। शर्त यह है कि जमीन नू नजरअंदाज ना करो, अपनी जमीन नाल, अपनी रूट्स नाल जिहड़ा नहीं वो जुड़े रहो। ये बच्चों नू बचपन तो ही समझाना पड़ेगा। चंगी औलाद बनन दा फार्मूला भी बाणी दस रही है बच्चों नू खातब है कि जिन दिए तुद बाप महतारी, जिन दिए बरात पुत हारी, जिन दिए तुद बनता अरमीता, तिस ठाकर को राख ले चीता। कि जिन्ने तेनू इड्डा प्यारा बाप मां बाप दिते ने, जिन्ने तेनू भरा बहन दिते ने, जिन दिए तुद बनता अरमीता, जिन्ने स्त्री ते मीता मित्र दिते ने, तिस ठाकर को राख ले चीता। मैं वार वार कहने जो परमात्मा नू चित करन दा मतलब यही है। परमात्मा नू नाम दी गल जदों हुंदी है, ये वैल्यू सिस्टम ने, ये संस्कार ने, ये साडे बच्चे ने, ये साडे देश दे, साडी कौम दी, साडे सारे कल्चर दी, ये साडे दौलत ने, साडा भविख है। साडे बच्चे सानू साडे घरां दियां रौनकां ने, घरां दे शिंगार ने, सारा साडा सब तो कीमती सरमाया है साडा। ये साडे वारस ने, साडी जिंद जान है, साडा खानदान इन्हां दे सारे चलना है। तां इसलिए बहुत जरूरी है कि इन्हां दा बच्चों नू सहज संयम सदाचार सादगी कदरां कीमतां इन्हां नू सिखाईयां जान। क्योंकि एक गल बड़ी ध्यान नाल सानू मां बाप नू वड्डियां नू समझना चाहिए है कि when everything is coming in your way you are in wrong lane। जदों हर चीज सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाती है, बिना मुशक्कत कीते, बिना मेहनत कीते मिल जाती है, इसका मतलब सीधा है कि कोई ना कोई गलत हो गया। बच्चों नू समझाओ कि पैसे नाल मकान बन सकते ने, घर नहीं बननगे। होम ते हाउस विच फर्क है। महंगी घड़ी खरीदी जा सकती है, टाइम नहीं खरीद सकते। ओहदे प्राप्त कर लोगे, सत्कार नहीं मिलता, रिस्पैक्ट जिहड़ी है अकली पाइए मान की गल जिहड़ी गुरु नानक साहब ने कही है। तो दवाइयां खरीदियां जा सकती, सेहत कितों खरीद लोगे? किताबां मिल जाएगियां, ज्ञान किवें खरीदोगे? दैट यू विल हैव टू। सोने पलंग बैड मिल जाएंगे, गद्दे मिल जाएंगे, खरीदे जा सकते हैं पैसे नाल। नींद किवें खरीदोगे? ये गल्लां जिहड़ियां ने सानू बचपन तो ही छोटे हुंदे ही बच्चों को समझाना पएगा। वो गल है ना, दीवा बालन लई तेल खोजना पवेगा, ते तेल जिहड़ा है वो लर्निंग है, तेल वैल्यू सिस्टम है। बिन तेल दीवा क्यों जले, किवें जलेगा? अखीर दे विच अंत विच मैं यही कहांगा कि अगर कमरे विच हनेरा है तां सब तो वड्डा रूहानी कारज आकाश दे तारे तोड़न, मैं आकाश दे तारे तोड़ लियावांगी दे बजाए कमरे विच एक थोड़ा जिहा मोमबत्ती, छोटा जिहा एक दीवा जगा के हनेरा दूर करन दे विच है। इस तो वड्डा जिहड़ा रूहानी कारज हो नहीं सकता। तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ यही दसदा सत्कार नाल कि गुरु ग्रंथ साहब सारी मनुखता दे दिलों दे विच प्यार दी छावां दी रोशन कर सकता है, उन्होंने बहार ते खेड़ा लिया सकता है, बशर्ते असी अपने घरां दे विच ऐसे माहौल क्रिएट करिए कि बच्चे जिहड़े ने उन्हां माहौलों के हिसाब नाल पलन, ऐसी परवरिश दईए कि बच्चे जिहड़े ने वो वैल्यू सिस्टम नाल जुड़न,
कि जो है ना बिन तेल ती गीवा क्यों जले। तो ਉਹਦੇ ਚ यही कह रहे हैं कि ਜਿਹੜਾ जब तक वैल्यू सिस्टम नहीं आएगा ये दीवा ਜਿਹੜਾ ਇਹ शरीर रूपी दीवा है बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹ महात्मा बुद्ध ने ਕੋਲ ਜਦੋਂ महात्मा बुद्ध ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਆਨੰਦ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਦੀਪੋ ਭਾਓ ਆਪਣੇ ਦੀਵੇ ਆਪ ਬਣੋ। सारी उम्र मैं तेरा दीवा नहीं बन सकता, हुण तैनूं अपनी रोशनी आप बनानी पई। माँ बाप सारी उम्र बच्चों के नाल नहीं रहने, माँ बाप दे ऐसी रोशनी बच्चों च पा दिओ कि वो फिर अगों अपनी रोशनी ते रोशनी चलती रहे। मेरी चिंता गुरु ग्रंथ साहिब दे जिहड़ी है वो वैल्यू सिस्टम दी है, संस्कारां दी है, गुरु ग्रंथ साहिब दी फिलोसफी दी, गुरु ग्रंथ साहिब दे मैसेज दी है। जदों ये जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब दी है गुरमत दी गल असीं अपने बच्चों च पावांगे, बच्चे अगे वर्ड दे विच उस रोशनी नूं फैलाणगे। तो इतनियां ही मेरियां बेनतियां जी, बुरला चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।